Students, today I am going to discuss some aspects of the fundamental rights that has been guaranteed to us by the Constitution of India. We are not going to discuss all the fundamental rights, but today I am going to tell you some important facts regarding the fundamental rights. See, we all know that at present our Constitution has guaranteed 6 fundamental rights: right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. Today we are going to discuss some of the important parts of the right to equality. Part 3. We all know that there are 22 parts in the Indian Constitution, and part 3 of the Indian Constitution talks about the fundamental rights. So since this part 3 of the Indian Constitution is a very important part of the Constitution, so much that it is often described as the Magna Carta of India. Magna Carta, what is Magna Carta? कभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ये एक डॉक्यूमेंट साइन किया गया था इंग्लैंड में बहुत साल पहले, और उस डॉक्यूमेंट में राजा ने बहुत सारे राइट्स और फ्रीडम दिए थे टू द पीपल ऑफ इंग्लैंड. सो दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज द मैग्ना कार्टा. ओके, सो that document talks about the fundamental rights. That is why we also called part 3 of the Indian Constitution as the Magna Carta of India, because it is providing many fundamental rights to the citizen of India. Now, these fundamental rights can be suspended. Okay, we all know that fundamental rights cannot be suspended under any normal circumstances, under any normal situation, but ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी, जब अगर सरकार इमरजेंसी लगा देती है पूरे देश में अंडर आर्टिकल 352, तो उस इमरजेंसी सिचुएशन में सरकार चाहे तो यह लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकती है. ठीक है, लेकिन उसमें भी जो 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 20 और 21, जिसके बारे में मैं आपको जिक्र करूंगा इसके बारे में. आर्टिकल 20 और 21 जिसमें राइट टू लाइफ आता है और राइट टू लिबर्टी आता है. ठीक है ना, ये 2 राइट को सरकार सस्पेंड नहीं कर सकती है. बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है ना, वो सबको सरकार सस्पेंड कर सकती है. तो आवर फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट्स विथ आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 13 से शुरू होता है और आर्टिकल 35 में ख़त्म हो जाता है. आर्टिकल 13 को अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो आर्टिकल 13, इफ यू क्लोजली एनालाइज आर्टिकल 13, you will find that this article 13 forms the basis of the doctrine of judicial review. What is judicial review? We all know that judicial review is the power of the court, of the Supreme Court and High Court, to examine the laws of the legislature as well as the acts of the executive. Okay, so this article 13 forms the basis of the doctrine of judicial review. It aids the courts and citizens to check the misuse of power, by the legislature and the executive. मतलब अगर लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और एग्जीक्यूटिव ने अगर कोई ऐसा काम किया वो भी अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल रहता है, तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट चाहेगी तो उसके काम को इनवैलिड कर सकती है ना, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है, उसको नल एंड वॉइड कर सकती है ना. तो थ्रू दिस पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू द कोर्ट कैन चेक द वर्किंग ऑफ बोथ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. सो देयर आर मेनी आर्टिकल्स that deals with the fundamental rights. Article 14, Article 15, Article 16, Article 17, Article 18, Article 19, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं. हम यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं. चलिए, एक आर्टिकल है आर्टिकल 15. इफ़ यू read article 15, you will find that it says prohibition of discrimination. किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए इंडिया में ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. ठीक है, ये आर्टिकल 15. आर्टिकल 15 में बहुत सारे सब सेक्शन है, जिसमें एक सेक्शन है आर्टिकल 15(3). आर्टिकल 15(3) क्या कहता है?
द स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन। सरकार अगर चाहेगी तो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है। और इसी के तहत सरकार ने रिजर्वेशन दिया था वीमेन को। कहाँ पे दिया था? लोकल बॉडीज़ में, ठीक है, इन 1992। और इसी आर्टिकल 15(3) के तहत द गवर्नमेंट टुडे इज प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू द चिल्ड्रेंस अंडर राइट टू व्हाट? अंडर राइट टू एजुकेशन। देन सी आर्टिकल 15(4). आर्टिकल 15(4) क्या कहता है? द स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज ऑफ सिटीजन। सरकार अगर चाहे तो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है जैसे ST SC OBC, उनके लिए सरकार सीटें रिजर्व कर सकती है। कहाँ रिजर्व कर सकती है? नौकरी में नहीं, सिविल सर्विस में नहीं, यहाँ पे सीट रिजर्वेशन की बात की जा रही है। कहाँ पे? इन एजुकेशनल institution. So that means we can say that Article 15(4) deals with the reservation of seats in educational institution for whom? For the socially and educationally backward classes. ठीक है? Then Article 15(6). Article 15(6) क्या कहता है? The state is allowed to make a provision for the reservation of 10% of seats for economically weaker section. अगर सरकार चाहे तो 10% सीट रिजर्व कर सकती है इकोनॉमिकली वीकर जो है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनके लिए कर सकती है। ये आर्थिक रूप से कमज़ोर कोई भी हो सकता है, जनरल कैटेगरी के लोग भी हो सकते हैं, ST SC के लोग भी हो सकते हैं। तो आर्टिकल 15(4) में खासकर बात की जा रही है किसके लिए? बैकवर्ड क्लासेस के लिए। लेकिन आर्टिकल 15(6) बात कर रहा है किसके लिए? ये बात कर रहा है जनरल सेक्शंस के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस अमंग द जनरल पीपल। तो सरकार चाहे तो यहाँ पे 10% सीट उनके लिए रिजर्व कर सकती है। और सरकार ने 10% सीटें सिविल सर्विस में रिजर्व की है। 2019 में सरकार ने 10% सीट रिजर्व किया किसके लिए? फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ विच क्लासेस? ऑफ द जनरल क्लासेस। हम लोग अभी देखेंगे इसके बारे में। उसके बाद आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इक्वालिटी मतलब एम्प्लॉयमेंट के मामले में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 2-3 आर्टिकल्स। एक है आर्टिकल 16(4). ये क्या कहता है? इट प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस। आपको पता है सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया गया। किसको दिया गया? ST को, SC को और OBC को। तो यहाँ पे ST और SC को रिजर्वेशन देने की बात की गई है आर्टिकल 16(4) में। तो अगर क्वेश्चन है, मान लीजिए कि कौन सा आर्टिकल है जिसने गवर्नमेंट को ये अधिकार दिया टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू द ST SC इन द गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज, तो दैट इज आर्टिकल 16(4). आर्टिकल 16(4) टॉक्स अबाउट, इसी के तहत रिजर्वेशन दिया गया था टू द ST SC इन द गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज। देन आर्टिकल 16(6) द स्टेट इज परमिटेड टू मेक अ प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सरकार 10% सीटें रिजर्व कर सकती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द जनरल क्लासेस इन द गवर्नमेंट सिविल सर्विस। तो सिर्फ ST SC और OBC के लिए सीटें नहीं, सरकार अगर चाहे तो 16(6) के तहत 10% सीटें जनरल सेक्शन के लोगों के लिए भी रिजर्व कर सकती है। खासकर वो जनरल सेक्शन जो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, मतलब जो इकोनॉमिकली वीकर किनको माना गया है अभी के डेट में पता है? जिनका सालाना इनकम 8 लाख रुपए से कम है, उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन माना जाता है। और वैसे क्लासेस को सरकार जो है 10% सीटें उनके लिए रिजर्व कर दी है सरकार ने, है ना, 2019 में। ठीक है, मतलब ST SC और OBC के अलावे 2019 में सरकार ने और 10% सीटें रिजर्व किया है किनके लिए? फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द जनरल सेक्शन। अंडर विच आर्टिकल? अंडर आर्टिकल 16(6). ठीक है, देखिए मैंने लिखा भी है, द सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड एन ऑर्डर इन 2019 टू प्रोवाइड a 10% रिजर्वेशन टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हेंस आर्टिकल 16(6) वॉज एडेड। ये नया आर्टिकल ऐड किया गया था 2019 में, जिसके तहत जो है 10% सीटें रिजर्व की गई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द जनरल सेक्शन। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 आपको पता ही है, इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट आर्टिकल, क्योंकि इसी आर्टिकल ने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया। देख सकते हैं यहाँ पे, अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज कंप्लीटली फॉरबिडन। अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने वाला ये आर्टिकल 17 है। और आपको ये पता होना चाहिए, जानकारी में आपको ये मालूम होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट जो भी हमें मिले हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं।
एब्सोल्यूट मतलब कि वो अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है। सरकार इस एक्स्ट्रा हम कह सकते हैं कि नॉर्मल सिचुएशन में सरकार फंडामेंटल राइट्स आपका सस्पेंड नहीं कर सकती है, लेकिन एक्स्ट्रा नॉर्मल सिचुएशन अगर होता है, जैसे इमरजेंसी लागू हो गया या कर्फ्यू लागू हो जाता है या लॉकडाउन हो जाता है, तो सरकार आपके फंडामेंटल राइट्स को टेम्पोररीली सस्पेंड कर सकती है ना। आपको बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, लेकिन उस पर भी रेस्ट्रिक्शन है। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको मिला हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को कुछ भी बोल दो। फ्रीडम टू कैरी आउट एनी प्रोफेशन, कोई भी काम करने का अधिकार आपको मिला है अंडर आर्टिकल 19। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चोरी करो, डकैती करो, स्मगलिंग करो, ठीक है ना। तो फ्रीडम टू फॉर्म एनी पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन, you have the freedom, but that does not mean that you have formed the नक्सलाइट ऑर्गेनाइजेशन एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब सब में एक्सेप्शन है, रेस्ट्रिक्शंस है सारे फंडामेंटल राइट्स में। लेकिन आर्टिकल 17 में जो फंडामेंटल राइट्स है, दैट इज द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, दिस इज द ओनली आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर ऑफ एब्सोल्यूट नेचर। मतलब इसको किसी भी सर्कमस्टांसेस में सरकार सस्पेंड नहीं कर सकती है ना। हेंस वन कैन नॉट वायलेट आर्टिकल 17 अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। मतलब बाकी जितने भी आर्टिकल्स है, फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स है, उसको सरकार अंडर एक्स्ट्रा नॉर्मल सिचुएशन में सस्पेंड कर सकती है, लेकिन आर्टिकल 17 को किसी भी सिचुएशन में सरकार सस्पेंड नहीं कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 17 इज द ओनली आर्टिकल कंसर्निंग फंडामेंटल राइट्स विच आर एब्सोल्यूट इन नेचर। और इसी अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए सिर्फ सरकार ने आर्टिकल 17 ही इंसर्ट नहीं किया। 1955 में पार्लियामेंट ने कानून बनाया, याद रखिएगा इसको, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। और इसी अनटचेबिलिटी एक्ट को 1976 में सरकार ने और कड़ा बना दिया, स्ट्रिंजेंट बना दिया, है ना। और इसका नाम चेंज करके कर दिया गया द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। अपार्ट फ्रॉम दिस, in order to protect the scheduled caste and scheduled tribes from being offended by the higher caste people, the parliament also enacted the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989। तो ये सब कुछ कदम सरकार ने उठाए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस इन ऑर्डर टू promote the welfare of the backward section, in order to protect the interest of the backward section, in order to prevent the exploitation of the backward section from the upper caste people। okay। अब एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में क्या कहा गया आपको पता ही है कि किसी भी तरह का कोई टाइटल आपको होल्ड नहीं करना है। अगर आपको किसी भारत सरकार को छुड़ा के अगर किसी और सरकार ने आपको कोई सरनेम दिया है, आपको कोई टाइटल दिया है, तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 18(1) ये कहता है कि एकेडमिक डिस्टिंक्शंस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोहिबिशन। मतलब अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने अगर आपको अपना कोई टाइटल दिया है आपको, तो वो आप होल्ड कर सकते हो, अपने नाम में ऐड कर सकते हो, सिर्फ वही ऐड कर सकते हो और कुछ नहीं ऐड कर सकते हो। जैसे किसी ने PhD कर लिया, तो PhD करने के बाद उसको एक टाइटल मिलता है डॉक्टर का, मतलब वो अपने नाम में अब वो डॉक्टर लगा सकता है। तो इसमें कोई प्रोहिबिशन नहीं है, ये टाइटल आप होल्ड कर सकते हो बिकॉज दैट टाइटल हैज़ बीन कन्फर्ड टू यू बाय द यूनिवर्सिटी। तो एकेडमिक टाइटल को प्रोहिबिशन से एग्जेम्प्ट किया गया ना, नहीं तो बाकी जितने भी आर्टिकल आपको टाइटल्स मिले हुए, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो इंडियंस लोग काफ़ी लॉयल होते थे अंग्रेज़ों के, जो बड़े बड़े ज़मींदार, जागीरदार, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन लोग जो लॉयल होते थे ना, उनको सरकार खुश होकर टाइटल दे देती थी। जैसे राजा, ओके, सियाह, राजा, महाराजा, राज बहादुर, खान बहादुर, राय साहेब, दीवान बहादुर, इस तरह का टाइटल उनको मिलता था। अब ये सारे टाइटल जो है हटा दिए गए, मतलब ये टाइटल अब आप होल्ड नहीं कर सकते हो। वाई? बिकॉज दीज आर अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल। हर आदमी अब बराबर है, सबका स्टेटस सेम है। अगर आप अभी भी राय बहादुर अपने नाम में ऐड करेंगे तो मतलब ये है कि आप ये शो करना चाह रहे हैं कि हम दूसरों से बढ़ के हैं, मेरा स्टेटस दूसरों से कहीं ज़्यादा है। अब इस तरह की सोच, इस तरह की फीलिंग आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको बराबर कर दिया है। तो इस तरह का टाइटल आप होल्ड नहीं कर सकते हो। अब एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए, 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। एक्चुअली क्या था कि आर्टिकल 18 को लेके किसी ने केस किया सरकार के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, कि भाई सरकार, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमें टाइटल होल्ड नहीं करना चाहिए, तो फिर सरकार भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण ये सब अवार्ड क्यों देती है ना। तो ये इसका जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ठीक है,
ये भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री ये टाइटल सरकार देती है, लेकिन ये टाइटल जो है ना आर्टिकल 18 के प्रोहिबिशन के अंडर में नहीं आता है ना। आर्टिकल 18 प्रोहिबिट्स क्या करता है, हेरिडिटरी टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी, जो अंग्रेजों ने जो टाइटल दिया था उसको प्रोहिबिट करती है। लेकिन सरकार अगर कोई टाइटल दे रही है ना, ठीक है ना, तो वो प्रोहिबिशन में नहीं आता है, ठीक है ना। दिस इज नॉट कमिंग अंडर द प्रोहिबिशन रूल ऑफ आर्टिकल 18। लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि अगर आपको भारत रत्न अवार्ड सरकार देती है तो भारत रत्न टाइटल आप अपने नाम में नहीं यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला हुआ है, तो सचिन तेंदुलकर अपने नाम में ये नहीं लिख सकता भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ठीक है। इसके लिए इसकी मनाही है। आपको वो टाइटल सरकार दी है, बट यू कैन नॉट यूज्ड एज सफिक्सेस और प्रेफिक्सेस टू द नेम्स ऑफ अवार्डीज। जिसको भी अवार्ड मिला, जैसे मान लीजिए आपको पद्मश्री मिला, तो अपने नाम में पद्मश्री नहीं लगा सकते हैं। आपको वो अवार्ड मिला है, टाइटल मिला है, लेकिन वो टाइटल को आप अपने नाम में ऐड नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ एक ही टाइटल को ऐड कर सकते हो, और वो टाइटल है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एकेडमिक डिस्टिंक्शन की वजह हासिल करने की वजह से जो आपको टाइटल मिलता है, ओनली यू कैन ऐड दैट टाइटल टू योर नेम। तो वाट एवर अवार्ड्स यू आर गेटिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट लाइक भारत रत्न और पद्म विभूषण, यू कैन नॉट यूज्ड एज सफिक्सेस और प्रेफिक्सेस टू द नेम्स, ठीक है। अपने नेम के प्रेफिक्स में और सफिक्स में आप ये टाइटल ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो होप it is clear to you. Next presentation we will talk about some other aspects, some more aspects of other fundamental rights. Okay, thank you.